Okay, so last time we started discussion about fiber optics, which involves basic concept of the fiber communication, you can say, or that how transmission takes place within a fiber. Okay, so in that process, we discussed the basic principle and broad idea about the two type of fiber, which is step index fiber and the gradient index fiber. So after that, there is a concept of a number of modes. Number of mode basically represent the path which a light can take within the fiber. Okay? What are the different possibility which a light can follow through? For example, in this figure, if we have different incident angle, for example, we have one dashed line, this one. This dashed line is following different path, and this solid line, this is following different path. Reason is we have different angle of entrance, right? If angle of entrance is changed, here we'll have the different incidence and accordingly path will change. So on the basis of the number of path, we can classify if a fiber will be single mode fiber or multi-mode fiber. If we have single mode, it means there is only one possibility, that single path is there which light can take place. That whatever angle we have, light will always follow through one path. In multi-mode, we have multiple possibility. Okay, so we define number of mode with this formulation, where Q and Q will describe at later stage, Q and V square. This turns out, this Q is again the fiber property, which define that how this profile is defined, diffractive index profile. And this V is different parameter. This is called normalized waveguide number. It depends on the wavelength of the light which we are using, radius of the core, and numerical aperture. Okay, so you can easily think that if you decrease A, means you are decreasing this radius. What does it imply? That size will be smaller, so it is very much possible that we'll have the limited number of available modes. Similarly, we have dependence on the refractive index via numerical aperture. And of course, single mode fiber will have n is equal to 1. And for multi-mode fiber, n will be greater than 1. So this Q which we were talking earlier, this represents the profile of the refractive index within the core. So if Q is equal to 2, we will be talking about parabolic gradient index profile. If Q is 1, we'll have the linear profile. And if it is infinity, in that case, we will have the step index fiber. So on the basis of this value of Q, we can figure out what will be the formulation for N. So for parabolic gradient index profile, N will be V square by 4. And for step index fiber, when Q is equal to infinity, उस केस में N की वैल्यू क्या होगी? If we take Q infinity, anyone? If Q is approaching to infinity, if you apply some limit formulation in this definition of N, what will be the value of N? V square by 2. Yes. V square by 2. You will have the V square by 2 for step index fiber. So you can see by default or by definition itself, we have higher number of mode in step index fiber as compared to gradient index fiber. We took simplest form of gradient index profile fiber. In that case, number of mode is half of the step index fiber. And this number of mode determine the dispersion as well, the quality of the signal transmission. So we usually prefer that we play with the gradient index fiber. We'll see how it happens. So number of mode are higher in step index fiber, that is fine. So we prefer to have optical fiber with small number of mode
and reason for that is to have reduced modal dispersion. जब हम मॉडल डिस्पर्शन की बात करेंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जब मोड्स ज़्यादा हैं तो मॉडल डिस्पर्सन ज़्यादा क्यों होंगे, या कह लीजिए ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में हम क्यों प्रेफर करते हैं. ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट नंबर ऑफ मोड्स. So you can remember these formulation. What is the value of n, their dependence on the Ri profile Q, and what are the dependent parameter for the V, which is waveguide number. So this formulation you must remember. You can have some related numerical in minor 2 or final exam as well. Okay, so then we come across the concept of dispersion. So what do you understand by dispersion? Any idea about that? जो कुछ पढ़ा हो पहले. सर लाइट जो होती है ना सर अपने कंपोनेंट कलर्स में जब ब्रेक हो जाती है तो उसको कहते हैं सर डिस्पर्शन. ओके, एनीवन एल्स? ओके, जो जनरल आइडिया जो है जो अभी आपके फ्रेंड ने बताया वो ठीक है. वो आप एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो बिकॉज यू हैव रीड दैट व्हेन लाइट इज पासिंग थ्रू प्रिज्म it gets split into 7 components because of some reason, and that we call as dispersion. But if we take this meaning in general context, this represent any change in the input waveform, whatever waveform you have. If it get distorted in its shape, that is called dispersion. For example, जो example अभी हम ले रहे थे white light वाला, तो उस केस में भी इनपुट पे एक पर्टिकुलर वेवफॉर्म था, दैट वाज वाइट लाइट, बट इट वाज डिस्पर्स्ड और इट वाज स्प्रेड आउट इन टर्म ऑफ वेवलेंथ. सो दैट इज a type of dispersion, but in dispersion we can have another type of distortion as well. But keep in mind, energy will remain same. There will be only change in the shape of the waveform. So you can say the broadening of the digital pulse, if you are talking about the communication, that is called dispersion. So usually we send a digital pulse like square wave. So if at the output this is not a square wave, like this get distorted by some amount, so the content is same, but structure of the waveform is changed. Here it was quite sharp, but it got slanted at some angle because of the transmission. So this is also another type of dispersion. So main idea जो वो यही है that shape of the signal get distorted while propagating through communication line, and in this case we'll have the optical fiber. Okay, so a disadvantage क्या है इसका, that this reduce the transmission capability. Okay, so for example we have अगर इसी concept को आप समझना चाहो, so if we have two distinct pulse at the input, but after dispersion what will happen, they change their structure. For example, these get widened. So because of this dispersion what happened, that there is a overlap between two signal. और अगर ओवरलैप हो गया तो क्या होगा, आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा सिग्नल क्या है, और उनकी जो फीचर्स है उसमें भी फर्क पड़ जाएगा अगर आप उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते. सो देयरफॉर दिस डिस्पर्शन रिड्यूस द ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से पैरामीटर है जो डिस्पर्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड व्हाट आर द मेन पॉसिबिलिटी व्हिच वी कैन यूज टू हैंडल दिस रिसोर्सेज और सोर्सेज ऑफ द डिस्पर्शन. तो इसमें मेनली 3-4 टाइप है, हम सिर्फ फिजिक्स वाले डिस्कस करते हैं. वन इज इंटरमोडल डिस्पर्शन या मॉडल डिस्पर्शन जिसको बोलते हैं. अनदर वन इज मटेरियल और क्रोमेटिक डिस्पर्शन. उसके बाद मल्टीपल आते हैं. We are not going to that, but only these two are important for our context. First, intermodal dispersion. वैसे नेम से क्लियर है, this is because of the different modes. We discussed that input rays can have multiple possible paths, and because of that the input signal will not have the same shape or same structure
after transmitting through the fiber. Why it happens? Let us see. If we have multi-mode fiber in our hand, what we'll have? We'll have the rays which follow different path. अगर path different follow करेंगे तो time भी different लगेगा ना. For example, we have this situation again, that one path is this dashed line, another path is this solid line. So both are taking different path. और अगर हम स्टेप इंडेक्स फाइबर ले रहे हैं और अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो उस केस में क्या होगा? दोनों की स्पीड तो सेम रहेगी, लेकिन जो पाथ लेंथ है वो चेंज हो गया. पाथ लेंथ चेंज होने से क्या होगा? अगर हमारे पास यहाँ पे 2 रेस थी, टाइम 0 पे यहाँ पे स्टार्ट हुई, तो आउटपुट पे वो अलग अलग टाइम पे पहुंचेगी. वन विल हैव टाइम t1, अनदर विल हैव टाइम t2. तो दोनों में डिफरेंट टाइम लगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पल्स है वो डिस्पर्स हो गए. जब भी पल्स की शेप है उसमें एक्स एक्सिस पे टाइम होता है ना, जो भी आप पल्स बनाओगे उसमें एक्स एक्सिस पे टाइम है हमारे पास. तो अगर इनपुट पे सेम टाइम पे जा रहे थे बट आउटपुट पे अगर डिफरेंट टाइम ले रही है, तो उसका मीनिंग जो पल्स है इसकी शेप में हमें इफेक्ट मिलेगा. सो दिस विल बी सिचुएशन फॉर स्टेप इंडेक्स फाइबर. So ray entering at same time will get spread out at the output, or we can say this get dispersed. सिंगल मोड फाइबर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं. रीजन उसका ऑब्वियस है, क्योंकि अगर पाथ ही एक है तो चाहे किसी भी एंगल पे फॉल करे, दैट विल फॉलो द सेम टाइम फ्रेम, राइट? जिस टाइम पे इनपुट अगर सेम टाइम पे एंटर हुआ तो बाहर भी सेम टाइम पे निकलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. बट मेनली हमारा इशू आता है मल्टी मोड फाइबर में. इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं? उससे पहले थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल कर लेते हैं. बिल्कुल सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री ही लगनी है आपकी, और कुछ नहीं है. हम ये फिगर आउट कर लेते हैं कि यहाँ पे स्प्रेड कितना होगा. जो स्प्रेड होगा वही हमें मेजर देगा डिस्पर्शन का. सो वी हैव टू फिगर आउट कि मैक्सिमल डिस्पर्शन कितना हो सकता है और इंटरमोडल. सो उसके लिए हमें क्या फिगर आउट करना है? वी हैव टू स्टार्ट विद द फॉर्मुलेशन कि हम ए और सी, इसके लिए टाइम निकाल लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा. लेट मी क्लीन देन इट विल बी बेटर. सो टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना है? जैसे वी ट्राई टू फिगर आउट टाइम फॉर ए टू सी, दैट इज द ए बी प्लस बी सी, है ना? दिस पाथ प्लस दिस पाथ डिवाइडेड बाय स्पीड विद इन दिस मीडियम. तो मीडियम के अंदर अगर स्पीड निकालनी है तो हम सी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, राइट? उसके बाद आपने क्या करना है? ए बी और सी बी का फॉर्मुलेशन निकालना है. उसके लिए क्या करो, यहाँ से आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो यहाँ पर. तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गए ना. उनका यूज करके वी कैन फिगर आउट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी बी इन टर्म ऑफ दिस ए सी. ये ध्यान रखना कि ये मिड में ही स्प्लिट करेगा. तो ये जो आप यहाँ पे अगर कोई एम बनाओगे तो आप ए एम के टर्म में जो भी आंसर निकालोगे आप उसको 2 टाइम कर सकते हो इन टर्म ऑफ ए सी. तो वो सिंपल है. तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के इसको कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म ऑफ ए सी, in term of refractive index of the core and cos theta. What is cos theta? This angle. या आप इसको इस एंगल की टर्म में भी लिख सकते हो, बट हमने यहाँ पे थीटा की टर्म में लिखा हुआ. सो अगर पूरे फाइबर की लेंथ L है तो क्या आप यहाँ से बता सकते हो कि फॉर्मुलेशन टाइम का क्या होगा? एनीवन? AC डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ये फॉर्मूला था. तो सिंपल सा है कि μ1 भी चेंज नहीं होगा, C भी नहीं होगा, cos थीटा भी नहीं होगा. सिर्फ ये जो AC पिक्चर में आ रहा है इसकी जगह हम लेंथ लिख देंगे. सो टाइम टेकन फॉर ट्रैवलिंग थ्रू कंप्लीट फाइबर विल बी μ1L C cos थीटा. तो एक रे के लिए तो हमारा ये टाइम लगेगा.
अब हम क्या करते हैं कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ट्राई करते हैं, क्योंकि वही डिस्पर्शन देगा ना कि मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है और मिनिमम कितना लगता है। उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वो हमें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्पर्शन बता देगा कितना पॉसिबल है। तो इस फॉर्मूला से हम वो चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल रेज ट्रांसमिटिंग थ्रू फाइबर विल हैव एंड कौन कौन से एंगल पॉसिबल है? दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सेप्टेंस एंगल। लेट अस ट्राई। वन विल बी थीटा 0 एंड थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ μ2 बाई μ1। ये चीज़ कहाँ से आई? दिस इज कमिंग फ्रॉम TIR कंडीशन। तभी ट्रांसमिट करेगा ना जब TIR होगा। तो 0 से लेके इस एंगल तक कोई भी थीटा की वैल्यू हो सकती है। तो थीटा 0 के लिए टाइम निकाल लीजिए और इस TIR कंडीशन के लिए जो थीटा है उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो T minimum will be for theta is equal to 0, that you can put theta is equal to 0 into this, you will get μ1L by C। T maximum निकालने के लिए क्या करना है? थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, ये जो भी हमने TIR की कंडीशन के बेस पे निकाला था ना। तो इसका मतलब T max कितना हो जाएगा? μ1 स्क्वायर L by μ2 C फॉर दिस एंगल। तो ये जो वैल्यू है दो, ये हमें रेंज दे रही है कि टोटल रेंज क्या हो सकती है टाइम की। मिनिमम टाइम कितना लग सकता है जब फाइबर में ट्रैवल कर लेगी, और मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है। तो अगर हमें डिस्पर्शन निकालना है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग डिफरेंस ऑफ दीज टू। सो डेल्टा टाउ आई फॉर इंटरमोडल डिस्पर्शन विल बी डिफरेंस ऑफ दीज टू, और उसके बाद आप सिंपल सोल्व कर लीजिए इसको। टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हैं। जो ये ब्रैकेट में टर्म है, दिस इज डेल्टा, पहले भी इंट्रोड्यूस की थी हमने डेल्टा, विच इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम इसकी टर्म में लिख सकते हैं। फिर इसका फॉर्मूला भी हमको पता है, अगर आप रिकॉल करो तो न्यूमेरिकल अपर्चर और डेल्टा में रिलेशन था ना, जब हम न्यूमेरिकल अपर्चर की बात कर रहे थे, तो वो रिलेशन यूज करके इस स्टेप को सोल्व किया हुआ। तो यू कैन सी कि इंटरमोडल डिस्पर्शन किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स लेंथ पे तो करे ही करेगा, उसके अलावा न्यूमेरिकल अपर्चर पे डिपेंड करेगा। मेन जो डिपेंडेंस आएगी उसके ऊपर आती है। So therefore we try to reduce numerical aperture to small value। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ गई यहाँ पे। एक तरफ तो हम चाह रहे थे कि न्यूमेरिकल अपर्चर जितना ज़्यादा उतना बढ़िया है ताकि मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो सके, बट जितना लार्जर आप न्यूमेरिकल अपर्चर करेंगे, व्हाट विल हैपन कि ये जो इंटरमोडल डिस्पर्शन की वैल्यू है अकॉर्डिंगली इंक्रीज होती रहेगी। सो वी हैव टू प्ले सम बैलेंसिंग पार्ट कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम कितना डिस्पर्शन अफोर्ड कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू चूज कर सकते हो। तो इसलिए हम हार्ड लाइन नहीं बता सकते कि हाँ यही वैल्यू न्यूमेरिकल अपर्चर की होनी चाहिए। ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करेगी कि आपने जो सिग्नल ट्रांसमिट करना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपके जो सिग्नल है काफ़ी लार्ज सेपरेशन के साथ है, तो उस केस में तो ऑब्वियस है कि अगर डिस्पर्स हो भी गया तो कोई इशू नहीं है, वो ओवरलैप नहीं करेंगे। अगर आप फास्ट सिग्नल सेंड कर रहे हो, काफ़ी पास पास है सिग्नल, तो उस केस में थोड़ा सा डिस्पर्सन होने पर भी सिग्नल ओवरलैप कर जाएंगे एंड वी कैन हैव द रिडक्शन इन द ट्रांसमिटेबिलिटी। सो देयरफॉर ये हमारा केस टू केस वेरी करेगा। सो इफ यू कंटिन्यू विद द डिस्कशन, दिस वी ऑलरेडी मेंशन कि अगर डिस्पर्सन रिड्यूस करना है, so we can reduce it with the numerical aperture, but that lead to reduction in the light collection capability। तो इसलिए हमें बार्गेन करना पड़ेगा, इनके बीच में ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि हम कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। यस सर ये फिजिक्स वाइज सर एक बार समझाइए कि सर ये जो डिस्पर्शन है सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे किस तरीके से सर डिपेंड कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एसेस तो नहीं कर रहा, ये तो रिलेटिव वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना। इसका आप सिंपल सा ये देख लीजिए कि आपके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ये डिसाइड करेगा कि वो कितने एंगल को अलाउ कर सकता है। ये तो क्लियर है चीजें में, या नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स TIR को इफेक्ट करता है?
यस सर। और अगर TIR इफेक्ट होगा तो इसका मीनिंग ये भी इफेक्ट होगा कि वो किस रेंज में लाइट को ट्रांसमिट करेगा, किस एंगल के लिए ट्रांसमिट करेगा, जो हमने अमेरिकन अपर्चर में भी पढ़ते थे, ओके सर। है ना। अगर एंगल की रेंज हमारे पास आ गई, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एंगल की रेंज को इफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब मल्टीपल, जितने कम एंगल ट्रांसमिट करेगा वो उतने कम रास्ते होंगे ना, या उतने कम पाथ होंगे। और अगर पाथ कम होंगे तो इसका मतलब डिस्पर्सन भी कम होगा। डिस्पर्सन आ क्यों रहा है यहाँ पे? क्योंकि मल्टीपल पाथ पॉसिबल है। अगर हम किसी तरह से पॉसिबल एंगल को रिड्यूस कर सकें, अगर पॉसिबल एंगल को मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही एंगल पॉसिबल है, तो 2 ही पाथ पॉसिबल होंगे, राइट। अगर यहाँ पे 10 एंगल पॉसिबल है तो 10 पाथ पॉसिबल होंगे। तो किस केस में डिस्पर्सन ज्यादा होगा? 10 वाले के केस में, ऑब्वियस है ना। तो इन टर्म अगर आप लेके आओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारी TIR की कंडीशन को इफेक्ट कर रहा है, या जिन एंगल के लिए TIR पॉसिबल है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से जो एंगल हम ट्रांसमिट कर सकते थे उसकी रेंज चेंज हो रही है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंडेंस आ जाती है उसकी। ओके सर। एनीवन एल्स, किसी का अगर डाउट हो डेरिवेशन से रिलेटेड या कुछ और? ओके, तो ये जो अपना डिस्कशन था ऊपर वाला, ये स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के लिए सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। उसका बेनिफिट भी है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का कि इसमें बाय डिफॉल्ट जो इंटरमोडल डिस्पर्सन है ना वो रिड्यूस हो जाता है। तो ग्रेडेड इंडेक्स का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसमें होता क्या है कि कोर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है और विद इन कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। जैसे जैसे हम क्लैडिंग की तरफ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है। तो स्टेप इंडेक्स में तो क्या था, कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो उसकी वजह से चाहे किसी भी एंगल पे रे फॉल करे वो सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करेगी। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे हम कोर से दूर मूव कर रहे हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। एज ए रिजल्ट जो हमारी रेज एंटर करेगी वो डिफरेंट स्पीड रखेगी, कोर के डिफरेंट पार्ट में उसकी स्पीड डिफरेंट होगी। इस चीज का बेनिफिट मिलता है डिस्पर्सन को रिड्यूस करने में। किस तरीके से, लेट अस सी। तो दिस इज फाइन कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि इफ यू हैव टू रेज, वन मेकिंग लार्जर एंगल नीड टू ट्रेवर्स लार्जर डिस्टेंस। इनमें से जो लार्जर एंगल बनाएगी, फॉर एग्जांपल ये है, इसका एंगल लार्जर है तो इसको डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ रही है ना फाइबर के अंदर। लेकिन इसका बेनिफिट देखिए कि ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी कोर के आउटर पार्ट में। ये कोर के आउटर पार्ट में रिलेटिवली ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी एज कंपेयर टू द रे विच इज एट द लोअर एंगल। अब अगर ये ज़्यादा टाइम लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पेंड कर रही है उसका मीनिंग क्या हुआ कि उस पार्ट में उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, उसने डिस्टेंस तो ज़्यादा चलनी थी लेकिन उसकी स्पीड बीच बीच में ज़्यादा हो रही है। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो उसका गेन था डिस्टेंस में दैट विल बी कंपनसेटेड समहाउ। वी डोंट से कि एग्जैक्टली कंपनसेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा डिस्पर्शन, बट इट विल बी रिड्यूस्ड। रीज़न उसका क्या हुआ कि जो लार्जर एंगल पे रेज हैं जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द आउटर रीजन ऑफ द कोर जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और वो जो स्पीड है, इंक्रीज्ड स्पीड है, दैट विल कंपनसेट द इंक्रीज डिस्टेंस। तो आउटपुट पे जो टाइम डिस्पर्सन मिलेगा हमें वो स्टेप इंडेक्स फाइबर के कंपैरिजन में कम होगा। इसीलिए यूजली हम जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है वो प्रेफर करते हैं ताकि ये जो डिस्पर्सन है बाय कंस्ट्रक्शन ही हमारा रिड्यूस हो। फिर हमारे पास जो न्यूमेरिकल अपर्चर के साथ ट्रेड ऑफ वाली सिचुएशन थी वो कुछ एक्सटेंट तक कम हो जाएगी।
Okay, so this is important concept which you must understand. Okay, so this we already talked about. इसका ड्राइव नहीं करते, डेरिवेशन इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, बट फॉर्मुलेशन आप ये जरूर याद रखना है इसकी कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में जो इंटर मॉडल डिस्पर्सन का फॉर्मूला है वो क्या है. ओके, सो दिस इज गिवन बाय म्यू टी एल. अगेन पैरामीटर जो डिपेंडेंस के ऑलमोस्ट सेम ही है, right? Depend on the numerical aperture. We have the high dependence on the numerical aperture in this case. Fine. Okay. So are you able to get the reason why we are getting lower dispersion graded index fiber conceptually? Yes, sir. Yes. Okay, that is good. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो डिस्पर्सन की टाइप है वो है मटेरियल और क्रोमेटिक डिस्पर्सन. ये कुछ हद तक हमारा जो प्रिज्म में डिस्पर्शन पढ़ते हैं ना, उसके साथ कुछ हद तक कुछ जैसा ही है, क्योंकि जो बेसिक रीजनिंग है वो सेम है. हालांकि इस डिस्पर्सन की रीजनिंग जो लास्ट 2 ग्रुप थे उनको मुझे आंसर नहीं मिला था, बट लेट अस डिस्कस इट हियर कि डिस्पर्सन होता क्यों है प्रिज्म में. बिकॉज डिफरेंट वेवलेंथ फेसेस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जो आप मान लीजिए प्रिज्म आपने 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिया है तो वो कांस्टेंट तो है, लेकिन अगर आपने इनपुट वेवलेंथ चेंज कर दी तो वो जो वेवलेंथ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फेस करेगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर वेवलेंथ. तो वेवलेंथ पे हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिपेंडेंस होती है. तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट है तो वहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो जाएगा. और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर चेंज हो गया तो जो 7 कंपोनेंट थे वो अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट हुए, तो वो एक तरह से स्पेशली सेपरेट आउट हो जाते बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दैट डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ. तो ये जो डिपेंडेंस है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, वही सेम रीजन यहाँ पे है कि जब भी आप कोई सिग्नल सेंड करते हैं तो वो सिंगल वेवलेंथ नहीं होता. अगर आप कोई डिजिटल पल्स सेंड कर रहे हैं, स्क्वायर वेव सेंड करते हैं, तो वो एक फोरियर ट्रांसफॉर्म है मल्टीपल वेवलेंथ का. तो अगर आपके पास सिग्नल पे मल्टीपल वेवलेंथ है और वो किसी ऑप्टिकल मटेरियल में से ट्रैवल कर रही है तो होगा क्या, जो अलग अलग कंपोनेंट है वेवलेंथ के वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फेस करेंगे. अब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फेस करेंगे तो क्या होगा, हर एक सिग्नल अलग डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करेगा. अब चाहे वो सेम लेंथ ट्रैवल करे, बट अगर उनकी स्पीड डिफरेंट है तो आउटपुट पे टाइम भी तो अलग ही लगेगा ना. इनपुट पे तो सेम टाइम पे एंटर हुए, बट आउटपुट पे वो अलग अलग टाइम पे पहुंचे. इसका मतलब जो सिग्नल था वो हमारा टाइम में स्प्रेड हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द रीजन ऑफ मटेरियल और क्रोमेटिक डिस्पर्सन. So this is just the graph to give you idea कि डिफरेंट सोर्सेज में जो स्पेक्ट्रम होता है वो किस तरह का है. कि जो नॉर्मल एलईडी है उसमें हमारा जो विड्थ है ज़्यादा होती है, लेज़र में कम होती है, एंड सेमीकंडक्टर एलईडी में रिलेटिवली फाइन होती है बट लेज़र जितनी नहीं होती. ये तो तब है जब आप सिंगल लाइट पल्स भेज रहे हो. डिजिटल के केस में सिचुएशन फर्दर कॉम्प्लिकेट हो जाती है. तो फॉर एग्जांपल ये हमें डिस्पर्शन की अमाउंट दे रहा है, जो ये विड्थ है ना इसकी, कि जो लेज़र है उसमें नैनोमीटर रेंज में 2 नैनोमीटर, बट अगर आप नॉर्मल लैंप सोर्स या सनलाइट हालांकि यूज़ नहीं करते हम ट्रांसमिशन में, बट जस्ट टू गिव यू आइडिया वी हैव वाइड रेंज ऑफ द स्पेक्ट्रल विड्थ. तो इस केस में डिस्पर्शन ज़्यादा होगा, लेज़र के केस में कम होगा. रीज़न उसका ऑब्वियस है क्योंकि जो स्पेक्ट्रल विड्थ है वो लेज़र के लिए लोअर होती है. अब स्पेक्ट्रल विड्थ लो होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो मल्टीपल वेवलेंथ वाली फीचर है वो रिड्यूस्ड है. एलईडी के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेज़र के अंदर रिलेटिवली कम है. आइडियली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक डेल्टा फंक्शन बने, बिल्कुल शार्प बने, साथ में कुछ भी ना है, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो वी आर लुकिंग एट द लाइट सोर्स जो रिलेटिवली फाइन हो,
तो इसलिए मोस्टली जो कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं लेज़र का यूज़ करते हैं। हालांकि मान लीजिए कुछ कम्युनिकेशन ऐसी है जहाँ पे प्रिसीजन इतनी मैटर नहीं करती या जो डिस्पर्सन है वो आप मैनेज कर सकते हो, तो हो सकता है आप एलईडी के साथ भी मैनेज कर लो, क्योंकि उसमें रिलेटिवली विड्थ तो ज़्यादा है, बट स्टिल जो नॉर्मल लैंप है उनके कंपेरेबल ठीक है। ओके, तो रीजनिंग वी ऑलरेडी डिस्कस कि जो लाइट है उसके अंदर जो डिफरेंट वेवलेंथ के कंपोनेंट है वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फेस करते हैं विद इन सेम मटेरियल। एज ए रिजल्ट जो डिफरेंट वेवलेंथ कंपोनेंट थे वो डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करेंगे, और अगर सिग्नल स्पीड डिफरेंट हुई तो जो सिग्नल पल्स है वो डिफरेंट टाइम पे आउटपुट पे पहुंचेगा एंड विल गेट ए डिस्पर्स्ड आउटपुट। तो इसका फॉर्मूला जो है दैट यू मस्ट नो, याद ही करना है आपने, कोई डेरिवेशन नहीं करना। इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल पैरामीटर। लेंथ ऑफ कोर्स ये तो फीचर में आता ही आता है। डेल्टा लैम्डा क्या है? डेल्टा लैम्डा ये विड्थ है। अब कौन सा डेल्टा लैम्डा? मान लीजिए मैक्सिमम पावर पी मैक्स थी या पी थी, तो p/2 पर जो 2 वेवलेंथ है उनका डिफरेंस डेल्टा लैम्डा है। जैसे हम बैंडविड्थ डिफाइन करते हैं ना, तो सेम ही चीज़ है डेल्टा लैम्डा यहाँ पे। तो लैम्डा जो हम लाइट जो भी वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं, और एक ये टर्म है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी कर रहा है, उसका आइडिया दे रहा है। अगर वेरिएशन ज़्यादा हुई तो डिस्पर्सन ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए मटेरियल ऐसा है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ बहुत कम वेरी कर रहा है, तो फिर आपका डिस्पर्सन रिड्यूस नहीं हो जाएगा कि स्पीड में वेरिएशन भी कम होगी, और अगर स्पीड में वेरिएशन कम हुई तो आउटपुट पे जो सिग्नल आएगा उसमें टाइम डिफरेंस भी कम होगा। ओके, तो दिस यू मस्ट रिमेंबर कि कितने पैरामीटर पे डिपेंडेंस है और कहाँ पे आ रही है। सो स्पेक्ट्रल विड्थ एक ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल में आपको मिल सकता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ है ये यूजली मटेरियल के लिए कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर है, इट्स कॉल्ड मटेरियल डिस्पर्सन कोफिशिएंट, डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एंड दिस इज गिवन बाय डेल्टा टाउ एम, जो हमारा यहाँ पे मटेरियल डिस्पर्शन था, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रल विड्थ। सो दिस रिप्रेजेंट मटेरियल डिस्पर्सन पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट स्पेक्ट्रल विड्थ। तो अगर मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल में डीएम दिया हुआ है, डिस्पर्सन कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो यू मस्ट रिमेंबर कि डीएम रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। जब आपको पता हो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तभी आप उसको कैलकुलेशन में यूज़ कर पाओगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको ये निकालना पड़ जाए, तो आपको फॉर्मुलेशन पता होनी चाहिए। यूजुअली जब भी फाइबर का मटेरियल दिया होता है तो ये जैसे स्पेसिफिकेशन होती है ना किसी भी मटेरियल की, तो जो फाइबर होगा उसके साथ ये स्पेसिफिकेशन मिलेगी आपको कि जो भी मटेरियल यूज हुआ है उसका मटेरियल डिस्पर्सन कोफिशिएंट कितना। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें डिस्पर्सन एंड मैक्सिमम बिट रेट का। डिस्पर्सन तो चलो हम पढ़ चुके हैं, और बिट रेट टर्म में भी आप यूज कर चुके हो कहीं पे, या आपको आइडिया हो वैसे ही कि हम मैक्सिमम बिट्स कितने ट्रांसफर कर सकते हैं पर सेकंड, दैट इज मैक्सिमम बिट रेट, है ना। अगर कम पल्सेस ट्रांसफर कर रहे हैं पर सेकंड तो बिट रेट उसकी कम है, मगर ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा। बट डिस्पर्सन जो है वो इस फैक्टर को इन्फ्लुएंस करती है। उसका रीज़न वैसे पहले भी क्लियर होगा, बट दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अब डिस्पर्सन की वजह से क्या है, वी हैव ब्रॉडनिंग ऑफ द पल्स, और पल्स ब्रॉड होने से क्या होगा, जो आसपास के सिग्नल पल्सेस हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, और दैट विल लीड टू द लॉस ऑफ द रिजोल्यूशन, या आप कह लीजिए आप सिग्नल को डिस्टिंक्टली नहीं देख पाओगे। जैसे हमने पहले भी बात की थी ना कि इनपुट पे तो 2 सिग्नल अलग अलग थे, बट डिस्पर्सन की वजह से उनकी शेप जब बदल गई तो क्या हो, वो ओवरलैप करने लग गए। तो ओवरलैप होने की वजह से क्या हुआ, आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो उन 2 सिग्नल को आप सिंगल ही रीड कर पाओगे। सो वो हमारी लिमिटेशन आ जाती है। तो मैक्सिमम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं वो डिस्पर्सन से कंट्रोल होता है कि हम कितना पास रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वापस उसी फिगर पे जाएं तो आई थिंक हम बेटर समझ पाएंगे।
इस फिगर की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्पर्शन के बाद ओवरलैप कर गए ना, तो हम इसको एक ही पल्स रीड कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस होनी नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी डिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी जो इनपुट पल्स है, ताकि अगर डिस्पर्शन हो भी तो ये ओवरलैप ना हो। तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे, उसका मतलब क्या हुआ कि आप एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो नंबर ऑफ पल्स है उनको लिमिट कर रहे हो। अब जैसे मान लीजिए ये 1 सेकंड में हमने 2 पल्सेस सेंड की, बट डिस्पर्शन की वजह से हम उसको सिंगल ही रीड कर पाए, तो ये एक्सेप्टेबल चीज नहीं है हमारी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जो गैप है ना, इसको 2 सेकंड करना पड़ेगा, या कह लीजिए बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो हम 1 सेकंड में 2 पल्सेस सेंड करने का टारगेट कर रहे थे, यहाँ पे हमें 1 सेकंड में हाफ पल्स ही मिलेगी, या कह लीजिए 2 सेकंड में 2 पल्सेस मिलेगी। तो हमारा जो बिट रेट है वो रिड्यूस हो गया ना, बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन। ओके, सो देयरफॉर दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम डिस्पर्शन को कंट्रोल कर सकें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ऑफ कोर्स। सो this dispersion limits the distance between two repetitor in a fiber optics link। और रिपीटेटर टर्म पढ़ेंगे क्या होती है। जब भी आप कम्युनिकेशन में सिग्नल भेजते हो तो ये नहीं कि बस फाइबर लगा दिया हो गया। रिपीटेटर का मतलब होता है कि बीच में उसकी कुछ स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो उसको वापस सेम एनर्जी देने के लिए मैं कुछ बीच में सेटअप लगाना पड़ता है, ताकि जो भी लॉस हुआ है इसको कुछ हद तक कंपनसेट कर सकें, या बीच में अगर आपने कोई और ऑपरेशन करना है। So larger the pulse dispersion, smaller would be the number of pulses per second, या जो बिट रेट है वो रिड्यूस हो जाएगी हमारी। और जो इसके लिए फॉर्मुलेशन है मैक्सिमम बिट रेट के लिए, दिस इज गिवन बाय 0.7 डिवाइडेड बाय डेल्टा टाउ। दिस इज कमिंग फ्रॉम बिट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड। डेल्टा टाउ आपको पता है, दिस इज द क्वाड्रेटिक सम ऑफ द इंटरमोडल डिस्पर्शन एंड द मटेरियल डिस्पर्शन। अभी हमने 2 ही डिस्पर्शन पढ़े हैं, इसलिए हमने 2 ही डिस्पर्शन यहाँ पे कंसिडरेशन में लिए। और फैक्टर भी होते हैं डिस्पर्शन के, हालांकि उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम होता है। अगर आप वो भी कंसिडर करोगे तो उस केस में यहाँ पर वो चीज़ें ऐड हो जाएगी। ओके, जितने भी डिस्पर्शन आपने कंसिडर करने हैं अपने प्रिसीजन के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे कंसिडर करना है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि ये टोटल डिस्पर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो डेल्टा टाउ है। ओके, उसके बाद एक एटेन्यूएशन का कॉन्सेप्ट आता है। लेट मी सी हाउ मेनी स्लाइड डू वी हैव। वी कैन कंप्लीट टुडे एज वेल और टुमारो, इट डिपेंड्स ऑन यू। या ऐसा करते हैं कि आइडिया ही देना है तो वी कैन फिनिश इट, ताकि आप कल की क्लास से फ्री हो जाए। इज इट फाइन विद यू? कैन यू प्लीज स्पीक अप? Yes, sir. 10 Yes, मिनट sir. से ज़्यादा नहीं लगने हैं, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करना है। Okay, sir. सो अटेन्यूएशन की बात करते हैं। कई बार डिस्पर्शन और अटेन्यूएशन में ना कंफ्यूजन हो जाता है, बट दोनों अलग अलग चीज़ें। आप फ़ोन के साथ इसको लिंक कर सकते हो। डिस्पर्शन तो क्या हुआ कि आपका जो फ्रेंड है फ़ोन पे कोई बात कर रहा है, उसकी आवाज़ की जो स्ट्रेंथ है वो तो ठीक ठाक है, आपको अच्छे से सुनाई दे रही है, बट उसकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, जो उसकी जो क्लैरिटी है वो अच्छी नहीं है, तो वो सॉर्ट ऑफ डिस्पर्शन है कि जो डिफरेंट सिग्नल आ रहे हैं उसकी तरफ से वो आपस में मिक्स हो गए। अटेन्यूएशन क्या होगा कि उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है लेकिन बहुत डिम है, यानी कह लिए आवाज़ बहुत कम आ रही है उसकी। फॉर एग्जांपल मैं ही बोल रहा हूँ, बीच में कोई इश्यू हो गया, अपना इंटरनेट कम है या कुछ भी है, और जो मेरी स्ट्रेंथ है इनपुट की वो आप तक सही नहीं पहुँच रही, उसकी एनर्जी या कह लीजिए एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है। तो अटेन्यूएशन में क्या होगा कि क्वालिटी अच्छी है बट उसकी जो स्ट्रेंथ है सिग्नल की वो रिड्यूस हो जाएगी। डिस्पर्सन का मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ सेम है, कोई इश्यू नहीं है स्ट्रेंथ के साथ, बट जो क्वालिटी है, जो सिग्नल है वो सेम क्वालिटी का नहीं आ रहा जो इनपुट पे था, वो आपस में ओवरलैप कर गए। ओके, तो ये डिफरेंस माइंड में जरूर रखना, दोनों को मिक्स नहीं करना हमने। सो दिस डिस्क्राइब द लॉस इन द सिग्नल स्ट्रेंथ अलोंग द लेंथ ऑफ द फाइबर। इसको हम यूजली डिफाइन करते हैं अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट से, which is डेसिबल पर किलोमीटर इसकी यूनिट रहती है यूजुअली।
डेसिबल टर्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पावर के लिए यूज होती थी, साउंड के केस में यूज करते हैं, तो सेम ही चीज है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो एटेन्यूएशन कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं दैट इज -10 ऑफ बाई एल, एल इज द लेंथ कि उसने लेंथ कितनी ट्रेवल की है, एंड log 10 ऑफ आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ओके, ये हमारी एटेन्यूएशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन है कि पर यूनिट लेंथ जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो कितना रिड्यूस हो रहा है, दैट इज गिवन बाय एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, बट फिजिकल मीनिंग यही है कि मान लीजिए 1 किलोमीटर जब हमारा सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है फाइबर में से, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर थी, वो कितनी रिड्यूस होगी, ये मीनिंग होता है एटेन्यूएशन कोफिशिएंट का। ये चलो ठीक है। फैक्टर्स क्या है, किन किन वजह से एटेन्यूएशन हो सकती है? दिस इंक्लूड अब्जॉर्प्शन, कि जो भी कोर का मटेरियल है उसके अंदर अब्जॉर्प्शन हो रही है, स्कैटरिंग अनदर फिनोमिना है, और दूसरा बेंडिंग, स्प्लाइसिंग, कनेक्शन। क्योंकि अब जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करोगे तो ये तो पॉसिबल नहीं ना कि आपके पास सिंगल फाइबर ही होगा, आप मल्टीपल फाइबर को बीच बीच में कनेक्ट करोगे ऑप्टिकल कपलिंग से। तो जब हम कपलिंग करते हैं, दो फाइबर को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तो वहां पे इश्यू आ सकते हैं। मान लीजिए कहीं बेंड कर दिया आपने जोड़ते वक्त, या कहीं पे शिफ्ट हो जाता है, तो आगे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, तो उनकी वजह से भी कुछ लॉसेस हो सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब्जॉर्प्शन का मीनिंग सबको क्लियर है कि क्या होता है, कि जब कोई लाइट या एनर्जी फॉल की, तो उसके अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं अलग अलग, जो भी मटेरियल आप यूज करते हो। वी कैन हैव एटॉमिक एनर्जी लेवल, मोलिकुलर एनर्जी लेवल, आयोनिक एनर्जी लेवल, इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी लेवल है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हो। तो उनकी वजह से क्या हो सकता है कि जो इनपुट सिग्नल है हमारा, उसकी एनर्जी का कुछ पार्ट ट्रांजिशन में लॉस हो जाएगा, कि वो एटम को एक्साइट कर देगा। तो जब डी एक्साइट होगा, हो सकता है कि सेम स्पेक्ट्रम में लाइट निकले ना निकले, हम नहीं कह सकते, दिस टोटली रैंडम प्रोसेस। तो वो मोस्टली हमारा लॉस होता है। अगर मान लीजिए कि नॉन रेडिएटिव लॉस था तो उसको हम ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे, अगर और किसी वेवलेंथ रीजन में निकल गया वो भी हमारे काम का नहीं है। सो मोस्टली दिस विल बी लॉस्ट। तो अब्जॉर्प्शन में क्या है, वी हैव डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय मटेरियल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। रीजन वही है, we have a different energy level because of the different configuration. We can have different type like intrinsic absorption. Intrinsic absorption क्या होगा, इसमें कोर एंड क्लैडिंग के जो मटेरियल हैं उनका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, उनकी वजह से अब्जॉर्प्शन होती है। तो यानी जो इंटरनल सिस्टम है उसी का यूज हो रहा है। कोर एंड क्लैडिंग जो इंटरनल पार्ट है फाइबर के, उनके जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, उन्हीं की वजह से अब्जॉर्प्शन है। एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज आ गई, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हो सकती है, या ह्यूमिडिटी हो सकती है, उनकी वजह से जो भी नए एनर्जी लेवल डायग्राम इंट्रोड्यूस होंगे, उनकी वजह से जहां पे हमारी अब्जॉर्प्शन होगी, दैट विल बी एक्सट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन। तो इंट्रिंसिक में तो क्या है, कोर एंड क्लैडिंग का मटेरियल ही रिस्पॉन्सिबल है। एक्सट्रिंसिक में आउटसाइड से जो मटेरियल होता है, या जो इम्प्योरिटीज है, या फॉरेन एलिमेंट है, उनकी वजह से जो एनर्जी लेवल डायग्राम इंट्रोड्यूस होंगे, दैट विल लीड टू द अब्जॉर्प्शन। सो इसमें हमारे डिफेक्ट हो सकते हैं, डोपेंट हो सकते हैं। जब हम कोर एंड क्लैडिंग का मटेरियल बना रहे हैं तो हो सकता है वहां पे जब डोपिंग कर रहे हैं तो कुछ इम्प्योरिटीज रह जाए। ओके, तो इनकी वजह से हमारे पास एनर्जी स्टेट इंट्रोड्यूस होती है जो अब्जॉर्प्शन को लीड करेगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है वो है ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी तो एटमॉस्फेयर में है, हालांकि उसको हम बाहर से प्रोटेक्शन लेयर लगाते हैं, बट स्टिल मे बी वाइल मैन्युफैक्चरिंग कुछ इम्प्योरिटीज वहां पे ह्यूमिडिटी की वजह से आ गई, तो वहां से भी हमारी अब्जॉर्प्शन हो सकती है। कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करता है, एंड फॉर विच अब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस इन दिस रेंज, या तो 2.73 पे या 6.25 पे,
माइक्रोमीटर पे, और ये जो वैल्यू है दिस कोरस्पॉन्ड टू द टेलीकम्युनिकेशन रेंज। तो इसी वजह से इस पार्टिकुलर कम्युनिकेशन मोड में जो हमारा ह्यूमिडिटी वाला पार्ट है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। सर एक बार ये सर अंतर बता दीजिएगा दोबारा से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। इंट्रिंसिक में बच्चे ये है कि जो फॉर एग्जांपल कोर के लिए मैंने ग्लास यूज किया और क्लैडिंग के लिए भी ग्लास यूज किया, तो जो ग्लास का मटेरियल है उसका अपना एनर्जी लेवल डायग्राम होगा ना, तो उसकी वजह से जो भी अब्जॉर्प्शन होगी दैट विल कोरस्पॉन्ड टू द इंट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी प्योर ग्लास की वजह से जो भी एनर्जी लेवल डायग्राम है। एक्सट्रिंसिक का क्या है कि ग्लास के अलावा जो भी बीच में इम्प्योरिटीज आ गई, डोपेंट, डिफेक्ट या ह्यूमिडिटी आ गई, उनकी वजह से जो एनर्जी लेवल डायग्राम इंट्रोड्यूस होंगे, वो जो अब्जॉर्प्शन इंट्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी एक्सट्रिंसिक, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल पैरामीटर है, कह लीजिए एक्सटर्नल सिस्टम है जो हम आइडियल केस में एक्सपेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, ग्लास वाला है वो तो रहेगा, क्योंकि ग्लास का इंटरनल एनर्जी लेवल डायग्राम है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर वो मटेरियल यूज किया है तो एनर्जी लेवल डायग्राम आएगा ही साथ में। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम रिड्यूस करने की ट्राई कर सकते हैं बाय हैविंग प्रॉपर एनवायरनमेंट, ताकि जो ह्यूमिडिटी है वो ना जाए, या जो भी आपने डोपिंग किया उसकी वजह से जो डिफेक्ट इंट्रोड्यूस हो वो हमारी कम्युनिकेशन रेंज में इन्फ्लुएंस ना करे। ओके, तो एक्सट्रिंसिक जो है एक्सटर्नल पैरामीटर है, कह लीजिए एक्सटर्नल रिसोर्सेज है अब्जॉर्प्शन इंट्रोड्यूस करने के लिए, और इंट्रिंसिक जो है वो कोर एंड क्लैडिंग के जो इंटरनल मटेरियल है, जो एग्जैक्ट मटेरियल है, उनकी वजह से ही इंट्रोड्यूस हो रहा है। इज इट क्लियर? ओके सर। ओके, तो ये भी इम्प्योरिटी वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आई विल नॉट गो इट अगेन। स्कैटरिंग वाला पार्ट, वी कैन हैव डिफरेंट स्कैटरिंग। मीनिंग क्लियर है सबको कि जो लाइट है वो एटम और मॉलिक्यूल के साथ स्कैटर कर सकती है, और ड्यूरिंग स्कैटरिंग क्या होता है कि उसकी कुछ एनर्जी जो स्कैटर है वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ थी इनपुट लाइट की वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका रीजन क्या क्या हो सकता है? वी कैन हैव वेरिएशन इन द मटेरियल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंपोजिशन, फ्लक्चुएशन, स्ट्रक्चरल होमोजेनिटी, यानी जब भी इनहोमोजेनिटी है मटेरियल में वी कैन हैव स्कैटरिंग। इनहोमोजेनियस क्यों हो सकता है, उनके बेस में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए मीडियम स्मूथ है या यूनिफॉर्म है तो उस केस में स्कैटरिंग की पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं, वो एक पार्टिकुलर स्पीड या सिस्टम के साथ चल रहा है, वो उसी में चलता रहेगा। बट अगर सिस्टम में कहीं कहीं सडन चेंज आ गए, कहीं पे मान लीजिए डेंसिटी बढ़ गई, कहीं पे कम हो गई, मान लीजिए आप ही ट्रैवल कर रहे हो किसी जगह, अगर बिल्कुल खाली जगह है तो आप अपना रास्ता चेंज करोगे ही नहीं। अगर बीच में भीड़ है, कहीं खाली है, तो आपको बीच बीच में अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। तो सेम ही चीज यहाँ पे है कि अगर कहीं पे भी हमें इनहोमोजेनियस सिस्टम मिला सो स्कैटरिंग इंट्रोड्यूस होगी ही होगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर आर क्लासिफिकेशन, जस्ट लीड कर रहे हैं आप। इसमें लीनियर और नॉन लीनियर स्कैटरिंग है। रेले स्कैटरिंग, this will be introduced because of unequal distribution of atomic और molecular density। नियर स्कैटरिंग में जो कंपोजिशन है, डिफेक्ट है, उनकी वजह से जो इनहोमोजेनिटी आ रही है that is considered into this classification। वेवगाइड स्कैटरिंग में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर कोर के अंदर एज प्लानिंग नहीं है, मान लीजिए स्टेप इंडेक्स फाइबर था तो आपको कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जरूरत थी ना, बट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वो कांस्टेंट नहीं बना, कहीं कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा हो गई, कहीं बहुत कम हो गई, तो उसकी वजह से हमारी स्कैटरिंग हो सकती है। उसके बाद नॉन लीनियर स्कैटरिंग के 2-3 पार्ट हैं दैट यू कैन जस्ट रिमेंबर। रमन स्कैटरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट काफ़ी बेसिक साइंस है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद बेंडिंग की बात कर रहे थे हम ना, बेंडिंग, स्प्लाइसिंग और कनेक्शन से कैसे लूज हो रहा है। ये जो
कोर एंड क्लैडिंग की इंटरफेस अगर स्मूथ नहीं है, कुछ वेवी स्ट्रक्चर बन गया, तो क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता रहेगा ना। अगर बिल्कुल स्मूथ है तब तो आप जज कर लोगे कि अब TIR होगा या नहीं होगा। अगर स्मूथ नहीं है तो क्या है, वी कैन सेट अप द TIR कंडीशन, बट इस नॉन यूनिफॉर्मनेस की वजह से कुछ पार्टिकुलर रे के लिए हो सकता है वो TIR ना शो करे, तो सिंपल रिफ्रैक्शन हो जाएगी और लाइट बाहर निकल जाएगी, तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। जब आप फाइबर्स को कनेक्ट कर रहे हो तो इस तरह की मिसअलाइनमेंट हो सकती है, जैसे एक फाइबर ये है, एक ये है, तो हम चाहेंगे कि कोर के साथ एग्जैक्ट मैच करे, बट हो सकता है हमने सही मैच ना कराओ, तो ये जो बीच में गैप रहा ना, यहाँ से लाइट निकल सकती है, कुछ सिग्नल यहाँ से लूज हो सकता है। हम बेस्ट चाहेंगे कि बिल्कुल टच करे, जो फाइबर 1 और फाइबर 2 है, इनके बीच में कोई लॉन्गिट्यूडिनल स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, बट परफेक्ट थोड़ी हम, गलती तो हो सकती है, तो यहाँ पे अगर गैप हुआ तब भी कुछ लॉसेस हो सकते हैं। लगाने सीधे थे फाइबर बट टेढ़े लगा दिए, तो यहाँ से तो एक साथ कनेक्ट हो गया, बट यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ गैप रह गया, जिस इज एंगुलर मिसअलाइनमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये जब हम कपलिंग करते हैं फाइबर्स की, उसके दौरान लॉसेस इंट्रोड्यूस हो सकते हैं जो हमारी अटेन्युएशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसमें जो फाइनल कॉन्सेप्ट आता है वो है अटेन्युएशन लिमिट का। मान लीजिए आपने इनपुट पे 10 dB का सिग्नल सेंड किया और अटेन्युएशन इतनी ज़्यादा हुई कि वो 0.5 dB का हो गया आउटपुट पे जाके, बट आपका डिटेक्टर 0.5 dB रीड ही नहीं कर पाता, तो वो तो हमारे किसी काम का नहीं हुआ, राइट। तो इसका मतलब एक लिमिट है जितनी अटेन्युएशन हम अफोर्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर अटेन्युएशन हुई तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो लिमिट है, दिस इज डिफाइंड बाय द मिनिमम पावर विच ए डिटेक्टर शुड रिसीव टू डिटेक्ट द सिग्नल। अगर आपका डिटेक्टर अच्छा है, जो लोएस्ट पावर को भी कैच कर सकता है, तो अटेन्युएशन लिमिट हाई हो जाएगी। अगर आपका डिटेक्टर बढ़िया नहीं है, वो मान लीजिए आपने 10 डेसिमल सिग्नल भेजा बट उसको 10 नहीं चाहिए, अगर 9.5 भी हो गया तो वो उसको रीड ना करे, तो उस केस में अटेन्युएशन लिमिट हमारी बुरी हो गई, है ना। तो ये डिटेक्टर पे डिपेंड करता है मोस्टली कैसा है हमारे पास, और इसको हम डिफाइन इससे करते हैं। डिफरेंट टर्म क्या है, जो ई जो है दैट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, जो भी हमारा सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी एनर्जी है। NP, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन जो डिटेक्टर के लिए है। NP is the minimum number of photon required for the pulse to be detected। जो डिटेक्टर है वो सिग्नल को डिटेक्ट कैसे कर रहा है, उसके ऊपर जो इंसिडेंट सिग्नल था वो फॉल कर रहा है, जो फोटोन फॉल कर रहे हैं, और डिटेक्टर उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, मे बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कोई और मैकेनिज्म है। तो मिनिमम कितने फोटोन हो ताकि वो उसको डिटेक्ट कर पाए। अगर मान लीजिए उसके लिए एक ही फोटोन सफिशिएंट है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, वो बेस्ट डिटेक्टर रहेगा हमारा, बट वो आइडियली होता नहीं। वी नीड टू हैव सम हायर वैल्यू फोटोन। तो मिनिमम कितने फोटोन चाहिए, दैट विल डिसाइड कि हमारी अटेन्युएशन लिमिट क्या होगी। और बी क्या है, बिट रेट। बिट रेट याद क्या थी, पीछे भी डिस्कस किया था कि पर सेकंड कितने बिट्स हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो भी डिफाइन करता है। अगर मान लीजिए 1 सेकंड में मैं 1 सिग्नल ही भेज रहा हूँ या 1 सेकंड में 10 सिग्नल भेज रहा हूँ, तो किस केस में सिग्नल रीड करना बेटर रहेगा, जिस केस में मैं 1 सिग्नल ही सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, मैं उसकी प्रोसेसिंग वगैरह कर लूंगा या डिटेक्टर कर लेगा उसकी प्रोसेसिंग, सो विल हैव द बेटर एक्सेप्टेंस। बट अगर हमारी बिट रेट ज़्यादा हुई तो उस केस में दिक्कत आ सकती है, और बिट रेट डिपेंड किस पे करती है, डिस्पर्सन पे। तो एक तरह से जो डिस्पर्सन है वो भी हमारा एज कंसिक्वेंस अटेन्युएशन लिमिट को इन्फ्लुएंस करता है। सो एप्लीकेशन है, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये आप पढ़िएगा इनके बारे में। 2 ही एप्लीकेशन आपने रीड करनी है, एक सेंसर्स और दूसरी कम्युनिकेशन की। मे बी जो नोट्स मैंने शेयर किए थे उसमें कुछ हो इसके बारे में। सेंसर का मीनिंग सबको क्लियर है, आप रीड कर लेना आज इनको, दोनों टॉपिक को। अगर डाउट हुआ इनमें तो मुझे मैसेज कर देना ताकि हम कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे, अदरवाइज
फिर ये खाना पूर्ति रह जाएगी। ठीक है, मैं जस्ट स्लाइड को रोल ओवर कर रहा हूँ। सिंपल रीडिंग है इनकी, ट्राई करो एक बार। अगर उसमें डाउट हुआ तो हम कल इसको कंटिन्यू करें। ओके, सो एनी क्विक क्वेश्चन व्हिच यू मे हैव? अदरवाइज हम कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट हुआ लेजर, पोलराइजेशन और फाइबर ऑप्टिक से रिलेटेड। जरूरी नहीं है सभी स्टूडेंट आए। आई विल कनेक्ट फॉर 10 मिनट्स। अगर जिस स्टूडेंट के डाउट है वो कनेक्ट कर सकता है। अगर कोई नहीं आएगा तो आई विल अज्यूम कि हाँ ठीक है, सभी स्टूडेंट को तीनों चैप्टर अच्छे से आते हैं। और हाँ, इसमें लास्ट पेज में कुछ असाइनमेंट है, न्यूमेरिकल टाइप है, तो वो भी आप सोल्व करने की ट्राई करें। ओके, ज़्यादा नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही है जो पीछे हमने डिस्कस किए थे। ओके, सो अगर क्वेश्चन नहीं है सो यू कैन लीव, बट ओनली दोज स्टूडेंट्स शुड स्टे जिनका वाइवा पेंडिंग है फ्रॉम ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3।